Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. शमिक भट्टाचार्य ने आज सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध विधान मार्केट स्थित नेताजी कैबिन में आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ राजू बिष्ट और शंकर घोष समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। नेताओं ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस राज्य में खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। एथलीट स्वप्ना बर्मन से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से परहेज किया। যেরকম হয় উত্তরবঙ্গের ফলাফল সেরকমই হবে, তবে এবছরে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো খাতা খুলতে পারবে না, এটা নিশ্চিত। দিনহাটা, শীতলকুচি, সিতাইয়ে যে সন্ত্রাস তৃণমূল কংগ্রেস চালিয়েছে, এখনো আমাদের কর্মীদের ঘর ছাড়া রেখেছে, আসামে বসবাস করছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সে আজকে দিল্লির একটা গেস্ট হাউসে চা জল দেবার কাজ করছে। যারা মানুষের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এই নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তৃণমূল উত্তরবঙ্গে খাতা খুলতে পারবে না, উত্তর কন্যাতেই তৃণমূলের সমাধি হয়ে যাবে। কেউ কোথাও আতঙ্কে নেই। ভারতবর্ষে 12টি রাজ্যে এসআইআর চলছে। অবিজেপি শাসিত রাজ্য কেরল, তামিলনাড়ুতে এসআইআর সম্পূর্ণ হয়েছে। কোনো বিএলও আতঙ্কে নেই। আতঙ্ক তৈরি করে থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস আতঙ্ক তৈরি করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু সাংবাদিককে বাধ্য করা হচ্ছে আতঙ্ক তৈরির পরিবেশ তৈরি করার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদি কেউ আতঙ্কে থাকে, তার রোহিঙ্গারা আতঙ্কে আছে, বাংলাদেশি জিহাদিরা আতঙ্কে আছে, এবং আতঙ্কে আছে যারা স্বর্গবাসী হয়ে গেছে, তারা উপরে চলে গেছেন। তাদের জোর করে যে ভোটার লিস্টে নাম ধরে রাখা হয়েছে, তারা ভেবেছিলেন এবার মুক্তি পাবেন, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করবেন, অমৃত লোকের যাত্রাপথ সুগম হবে, তারা আতঙ্কে আছেন। ऋचा घोष के परिवार के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। सिलीगुड़ी की रहने वाली इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज का नाम फिलहाल मतदाता सूची में विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है। इस घटना से परिवार हैरान और परेशान है। उनका कहना है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी के साथ ऐसी तकनीकी समस्या समझ से परे है। मामले को सुलझाने के लिए परिवार सोमवार को निर्वाचन आयोग के पास जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगा। स्थानीय खेल प्रेमियों ने भी इस पर आश्चर्य जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। মানে সমস্যা মানে কোন দিকে? বিচারাধীন বলছে। হ্যাঁ, ওটা জানি না অ্যাকচুয়ালি, তার মানেটাই বা কি আমি এখনো বুঝতে পারছি না। বিচারাধীন মানে হয়তো তারা বিচার করবে অন্য কিছু, ঠিক আছে। কি দেখলেন? হ্যাঁ, এখন দেখি কি ল্যাপসেস এখন কি আছে, আমাদের তরফ থেকে কোনো ল্যাপসেস আছে কিনা, বা ওদের তরফ থেকে কি ল্যাপসেস আছে। লিস্টে কি দেখাচ্ছে? লিস্টে কি জুডিশিয়াল না কি একটা দেখাচ্ছে। কিন্তু ও তো দেশের একটা ফিগার, ও তো দেশের মুখ। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু যাই কথা বলি, তাদের সাথে কথা না বলে তো এগুলো বোঝা যাবে না। এখন যতই হোক না কেন, যে একটা প্রসেসের মধ্যে হ্যাঁ কি হয়েছে কি না হয়েছে দেখে নি। কিন্তু আপনারা তো নথি জমাও করেছেন। হ্যাঁ, সব কিছু সবাই জমা আছে। তারপরেও এটা কেন? আমাদের যখন আমাদেরটা হয়েছে, ওদেরটা কেন হলো না সে শুনবে। হিয়ারিংয়ে ওরা বলেছিল যে ও তো থাকতে হবে, যার জন্য ওই একটা ডকুমেন্ট ওরা চেয়েছিল, তো বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো আমরা দিয়েছিলাম সবই। এখন দেখি ওরা আর কি চাইছে। রিচা ও দিদি দুজন, মানে আমার 2 মেয়ের আর কি। किसी भी अवैध प्रवासी या बांग्लादेशी मतदाता को शामिल नहीं किया जाएगा। न्याय व्यवस्था को देखकर ही निर्णय होगा, जल्दी में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा। मैं BLA 2 था और बूथ पर BLO के साथ काम कर चुका हूं। अपने अनुभव से कह रहा हूं कि मृत मतदाता बल या ट्रिपल एंट्री अवैध प्रवासी और रोहिंग्या शामिल नहीं होंगे। इससे कोई क्रोध या विवाद नहीं होना चाहिए। भारतीय मुस्लिम समुदाय के साथ कोई विरोध नहीं है। जो आशंका थी कि कुछ मतदाता हट जाएंगे, उसके बारे में पूछे जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा है और अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। অ্যাডজুডিকেট হয়েছে তো বিচার ব্যবস্থা তদন্ত করে দেখবে। বিচারপতিরা বা বিচার দপ্তর থেকে আসা আধিকারিকরা, তারা ভারতীয় কিনা দেখবেন, সন্দেহ নিরসন হবে,
আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। কোনো অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিম পশ্চিমবঙ্গে ভারতে থাকবে না। হিন্দুরা থাকবে, তারা শরণার্থী, তারা ধর্ম বাঁচানোর জন্য এসেছে। এখানে কোনো রাগ ঢাক করা কথাবার্তা নেই। ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমান এবং রোহিঙ্গা থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। আপনি যে আশঙ্কাটা করেছিলেন যে এত লক্ষ বাদ যাবে, কার্যত তো সেটাই হতে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আপনি যে আশঙ্কাটা করেছিলেন যে এত, আমি কতবার ভোটে লড়েছি জানেন? কলেজে 5 বার, পৌরসভায় 3 বার, বিধানসভায় 4 বার, লোকসভায় 3 বার। যোগ বিয়োগ করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছি। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने हाल ही में प्रकाशित एसआईआर मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम काटे जाने की घटना को गंभीर मुद्दा बताया और सभी से राजनीति छोड़कर सहयोग करने का आह्वान किया। मिरिक में आयोजित पार्टी की चुनावी सभा में उन्होंने कहा, एसआईआर सूची में मतदाताओं के नाम काटकर एक मतदाता की पहचान ही धूमिल कर दी गई है। यह हमारे लिए बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उसकी पहचान ही खो जाती है। नाम काटे जाने वाले व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, ये सब जानकारी भी गायब हो जाती है। यहीँबाट सप्लाई हुन्छ। जति पनि हाम्रो जिटिए एरियामा नाम काटेको छ, जति पनि जिटिए एरियामा बस्ने विचारधारीको लिस्टमा परेको छ, तपाईहरुको अगाडि बीजेपी पार्टी हर हमेशा उभिएको हुन्छ तपाईहरुको सहयोगको लागि। लिगली हामी त्यसको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, लिगली कसरी फाइट गर्ने। तपाईहरुले हरेस नगर्नुहोस्, डिप्रेस नहुनुहोस्, हामी तपाईहरुको जहिले पनि साथमा छौं भन्दै बिहानदेखि नै एसआईआरको जुन लिस्ट आउट भयो त्यो माथि धेरै चिन्तित भइरहेको छु। किनभने कसैको विचारधारामा छ, कसैको नाम काटेको छ। अहिले सायद तपाईहरु यहाँ आउनु भएको सबै ठिकै होला, तर जसको छैन उसलाई कति गाह्रो परिरहेको छ। तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो होला, मेरो छ कि छैन, मेरो आयो कि आएन, सबैले हेर्नुभयो होला। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद गोयाल पोखर विधानसभा क्षेत्र में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार करीब 78,000 मतदाताओं के नाम विचाराधीन सूची में रखे गए हैं। इसी सूची में गोयाल पोखर के विधायक और राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी का नाम भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि मंत्री और विधायक वीआईपी होते हैं, इसलिए उनकी सूची में नाम के साथ स्टार मार्क होता है, लेकिन उनका नाम विचाराधीन सूची में डाल दिया गया। विपरीत गांव में लगभग 1400 मतदाता हैं, जिनमें से 90 का नाम हटाया गया और बाकी अधिकांश को विचाराधीन सूची में रखा गया। मंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय के संज्ञान में है और न्यायपूर्ण निर्णय की उम्मीद है। এরা তো করে কি, এরা কাউকে হাউস অ্যারেস্ট করে রাখে, কাউকে অ্যারেস্ট করে নাই, কাউকে কারো ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে দেয়। আমার নাম তো উড়ে দিয়েছে ভোটার লিস্ট থেকে। আমার সাইডে মার্কটা থাকে স্টার, আমি ভিআইপি। আমরা আমাদের যারা মন্ত্রী, যারা এমএলএ, তাদের সাইডে গভর্নর জেনারেল, গভর্নর, অ্যাম্বাসেডর, তারপরে বড় ওদের পিছনে লেখা থাকে স্টার। কিন্তু আমি অবাক হলাম, আমার নামটাও সরাই দিয়ে নাই ভোটার লিস্টে। আজকে আমি দেখলাম আমার গ্রামে 1400 ভোটার, শুধু 90টা ভোটারকে তোলা হয়েছে, বাকি সব ভোটার গায়েব আছে। কি বার্তা থাকবে স্যার গোয়ালপুরবাসীর জন্য? গোয়ালপুরবাসীর জন্য এটাই বলবো, আগে যান সবাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করবে, নাম্বার 1 ভরসা রাখবে ऊपरवाला अल्लाह पर, अल्लाह भगवान। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 993399 0001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स।
इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। होली से पहले हावड़ा के वार्ड नंबर 3 में बसंत उत्सव की धूम देखने को मिली। रविवार सुबह रंग बिरंगी प्रभात फेरी के साथ पारंपरिक दोल उत्सव की शुरुआत हुई। 8 से 80 वर्ष तक के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरा इलाका गुलाल व अबीर के रंगों से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में उत्तर हावड़ा के विधायक गौतम चौधरी और पूर्व पार्षद बापी मन्ना मौजूद रहे। विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और रंगीन बना दिया। सुबह से ही बसंती उमंग और आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर दोल उत्सव का आनंद उठाया।
মানুষকে কি বার্তা দিচ্ছেন বলে মানুষকে সম্প্রীতির বার্তা, মানুষ মানুষের সাথে হাত মিলিয়ে সকলে মিলে একসাথে পথ চলা আর ভালো কাজ করা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাছে। বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, ঠান্ডা করা যায়। প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে, আলবাত সেটা কথা হবে। শীত পেরিয়ে বসন্ত এসছে, এই অঞ্চলের মানুষকে সাথে নিয়ে রঙে রাঙিনায় মানুষের মনে আরো ভালো করে উন্নয়নের কাজ সবাই মিলে একসাথে, সবাই মিলে একত্র হয়ে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে চলব, এটাই বার্তা। शिलीगुड़ी में अलग अलग 2 चोरी की घटनाओं में भक्तिनगर थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक बैटरी और एक कीमती साइकिल बरामद की और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के नाम पंकज कुमार साहा और सुदीप मालो हैं। दोनों भक्तिनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। 26 तारीख को इस्कॉन मंदिर रोड इलाके में एक साउंड सिस्टम की दुकान से बैटरी चोरी हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार किया और घर से चोरी की बैटरी बरामद की। 25 तारीख को बेड़गड़ा क्षेत्र से एक कीमती साइकिल चोरी हुई थी। सुदीप मालो को गिरफ्तार कर डन बस्को मोड़ से साइकिल बरामद की गई। रविवार को दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला न्यायालय में पेश किया गया। मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने मतदाता सूची में अपना नाम विचाराधीन दर्ज किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। रघुनाथगंज में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला किया। हुसैन ने कहा कि मौजूदा विधायक का नाम इस सूची में डालना अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। विधायक ने कहा कि वो इस मामले को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर उठाएंगे ताकि उनका नाम जल्द ही सामान्य मतदाता सूची में बहाल हो। सिलीगुड़ी की क्रिकेटर ऋचा घोष के बाद ये विवाद राज्य में नया राजनीतिक संकट खड़ा कर रहा है। আমরা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আছে, কিন্তু আমাদের যে নির্বাচন কমিশন বলেছিল যে নিরপেক্ষভাবে বৈধ ভোটার না বাদ যায়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মতো লোককে যদি করতে পারে, যত লোককে হিয়ারিং ডেকেছে সারা পশ্চিম বাংলায় উঠল। মুর্শিদাবাদ মানুষ হিন্দু মুসলমান সকলকেই তারা একটা লক্ষ্য করলো না। একটা মানুষ যাদের পাসপোর্ট আছে, যাদের সার্টিফিকেট আছে, সেই মানুষগুলোকে অন্তত 80% অন্তত নির্বাচন কমিশনে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু সেই না করে একটি লোকেরও নাম ওঠায়নি। আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা চাই যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আছে, বিচার ব্যবস্থায় বাদ দেওয়ার জন্যে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নক। কেন আমরা আজকে আমার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট আছে, আমার 2002 সালে নাম আছে, আমার বাবার नाम আছে, আমার দলিল আছে 1832 साले। चुनाव की तैयारियों के बीच जलपाईगुड़ी में केंद्रीय सशस्त्र बल की एक कंपनी पहुंच गई है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। जवानों के ठहरने की व्यवस्था जलपाईगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के न्यू हॉस्टल में की गई है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से केंद्रीय बल के जवान विभिन्न संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च करेंगे ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पहले चरण में कुल 7 कंपनियां तैनात की जाएंगी। एक कंपनी शनिवार रात पहुंच चुकी है, जबकि अन्य के भी जल्द आने की संभावना है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। স্যার কত কোম্পানি সিএপি পাচ্ছি আমরা 7 কোম্পানি সিএপি আপাতত পাচ্ছি। কালকে কি 7 কোম্পানি চলে আসবে? কালকে বিকেলে আর পরশুর মধ্যে আমরা এক্সপেক্ট করে পুরোটা ইন্ডাক্ট করতে পারবো। থাকার কোনো ব্যবস্থা করব? হ্যাঁ, ওই সব হয়ে গেছে। আমরা 7টা থানা ফিক্স আপ করা হয়েছে, ওখানে থাকবো। थैंक यू। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। राज्य भर में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।
इस बार सबसे चौंकाने वाला फैसला जूतों पर प्रतिबंध रहा। परीक्षार्थियों को जूते पहनकर प्रवेश नहीं मिला, केवल चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। जो जूते पहनकर आए उन्हें बाहर ही जूते उतारने पड़े। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। कई केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 1:50 तक चली। केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात और हॉल में सीसीटीवी निगरानी भी रही। কি নাম আপনার? অলকেশ বারিক, গ্রুপ সি পরীক্ষার জন্য কি কি নিয়ম রয়েছে? ঢোকার জন্য অ্যাডমিট, আধার বা ভোটার একটা অরিজিনাল প্রুফ, আইডি প্রুফ, আর নিষিদ্ধ বলতে শু পরা যাবে না, ঠিক আছে, স্বচ্ছ জল বোতল, স্বচ্ছ কলম এগুলো ব্যবহার করতে হবে। আর ব্যাগ হ্যাঁ অসুবিধা, মানে ব্যাগটা বাইরে রাখতে হচ্ছে, পয়সা করি সমস্যা আছে, মোবাইলের অসুবিধা হচ্ছে, ভিতরে রাখলে সুবিধা হতো, ব্যাগগুলো সাইডে ব্যাগ নিয়ে ভিতরে এলাওই নেই। এলাওই নেই। কি অসুস্থ করছে? হ্যাঁ অসুস্থ অবশ্যই, বাইরে থাকা মানে সেক্ষেত্রে কি করলে ভালো হবে? বাইরে একটা ভিতরে একটা সাইডে রাখা যদি ব্যবস্থা হতো ভালো হতো। কি নাম আপনার? অলকেশ বারিক।